Good morning, everyone. So, today's session is about a workshop on research proposal writing. Now, many of you might be knowing what is research proposal. It is the way we get the funding for the students. Okay. Now, obviously, you can get funding for yourself also if you add PI salary into the proposal. But mostly it is for the PhD students or MTech students, and obviously the project cost that student bear on their own should not be the case. Okay, so another part is this is about proposal, getting the money from the funding agencies. Second part is research component. So what is the research component? Basically, if you have any idea which you want to solve with your engineering knowledge, you have to put this in front of a committee will review it, and if they like it, if they found it novel or doable, then they approve it. So there are a lot of stages through which this proposal goes. Today is a hands-on workshop, so I will not show you this slide anymore. We will do it here, and if possible we will submit it by the end of the day. Okay, so it's not very difficult. This is how we generally write research proposals, because anything in documentation, it's a waste of time. It's a waste of my intellectual ability. So we have to minimize it. So you have to learn how to make documentation faster. May not be perfect. See, there are things. If I make this proposal today, it might be 80% good. If I read it again, I might take it to 95. Then if I start correcting, I might take it to 99. Some people are very peculiar. We call them English Nazis. Each and every word and word they keep on reading. And instead of like that, if I write like that, no, this is not a good engineering. Understand? If I want to say I am Ninad, I will say I am Ninad. Okay? This is Ninad and that he is that. No, just straightforward. In Marathi we call it Karta Karma Kriya Pad. Okay? 3 words, full stop. That's it. End of the story. Okay? So don't even think कि मैं internet पे कुछ देख लूँगा. I will find some great line, use some words, make active to passive, and then put it. Committee will like, no, that is not a good thing. Why that is not a good thing? Because whatever you are trying to write is your own thinking. Okay. Now if you take passages from different sites of internet, it won't go as a coherent story. Now what is a coherent story? मैं generally students को जब explain करता हूँ तो हम coherent story का example ऐसे देते हैं. एक राजकुमारी थी, ठीक है, एक मेंढक था जो तालाब के किनारे बैठे था. So these are the two discrete statements. Okay. Now you might thought कि हाँ इसमें कुछ connection हो सकता है, पर असल में while reading, everyone will make different sense out of it. It's his own story. So when you give a story, it has to be a complete story. Earlier sentence has to be connected to a next sentence. Secondly, why we are afraid of writing? हम सालों से शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड से या फिर आई डोंट नो आपने कब शुरू किया, पर 3 घंटे के पेपर हम खुद से ही लिख रहे हैं. 100 मार्क के लिए 30 पेजेस भर के आ जाते हैं 3 घंटे में. बट स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी इंडियंस आर नॉट कॉन्फिडेंट इन राइटिंग द थिंग्स. दैट इज वेरी बैड. हम जो लिखते हैं पेपर में उसको भी हम पेपर ही बोलते हैं, करेक्ट? तो भी आज लोग पेपर लिखने से डरते हैं, कॉपी पेस्टिंग के चक्कर की वजह से. Why? Because we try to read from internet, grasp the things and then modify it and then write. It becomes very complicated. जबकि आप एग्जाम में क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, नॉलेज होता था, आपको बस लिख के आना होता था. सही गलत का हम सोचते भी नहीं थे, एग्जामिनर देख लेगा. करेक्ट? रिसर्च पेपर में भी ऐसे ही होता है, पीयर रिव्यूअर देख लेगा, तुमको जो कहना है कह दो. अगर उसको नहीं समझ में आता, ही विल रेज द क्वेश्चन. ठीक है? So research paper, research proposal, any writing for that matter, according to me it's a waste of time. But if I don't write, what has happened to India? We were conveying our message like this without recording. ठीक है? तो अपने जो भी वेदास वगैरह जो भी थे, we know surgery वगैरह हम क्या करते थे? No were documented, or they were documented in Sanskrit, they were burnt out, correct? So documentation is required. Many of the, what you can say, actual research has happened
by our ancestors, not recorded, somebody else took a patent and now they are earning money out of it, correct? So writing is important, but don't waste your time. So there is a lot of confusion when to stop writing. Okay? So bare minimum require you do and forget about it. Just focus on your work. Your work should speak, not your documents. Okay? People should know Dr. Ninath's work and not he has written in research paper. Correct? अगर मैंने कोई ब्लाइंड कैप बनाई भी है, ठीक है, मैं उससे 10 पब्लिकेशन निकाल लूंगा, पर जब तक वो कोई ब्लाइंड पर्सन पहन के घूमता नहीं, उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स आर टेकिंग PhDs, डिफरेंट डिग्री जस्ट फॉर अ सेक. क्या इजीली मेरी PhD निकाल सकता है, इस टॉपिक को लेके सोचते हैं. क्या मेरे सोसाइटी में प्रॉब्लम है वो नहीं सोचता कोई. क्या रेडीमेड गिटहब पे मिल रहा है वो लोग देखते हैं. सो टुडे there is no restriction, there is no what you can say bounding. You are not going to get a degree out of it. मिला तो कुछ पैसा मिलने वाला है, ठीक है. So today's aim, we will try to do it for the society. We as a all are MTech engineers, correct? Very highly qualified engineers over here. So we will try to solve some problem theoretically. Just think about it. Okay. So for that matter, I will not go like I give a student's presentation. हम यहाँ पे सीधा काम करेंगे, ठीक है. काम राइटिंग का ही करेंगे लेकिन काम करेंगे, ठीक है. सो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का वर्कशॉप हम शुरू करने जा रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रिसर्च प्रपोजल राइटिंग. इफ यू कैन रीड, आई डोंट नो, पीछे जाके बैठ गए. टाइटल, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द टाइटल. बिफोर दैट आई नीड टीम्स. आप में से जितने लोग इंडिपेंडेंट प्रपोजल लिखना चाहते हैं, आई एम हैप्पी. But if you want to work in teams, you please form the teams. Maximum 4 faculties in a team. ठीक है? Minimum 1. ठीक है? और जिसको नहीं बैठना है कोई प्रॉब्लम नहीं है. अटेंडेंस शीट वहाँ कहीं होगी, साइन करो और निकल जाओ. और अपने ऐसे दोस्तों के साथ बैठो कि अगर कल फंडिंग आया तो उनके साथ काम भी करना पड़ेगा, करेक्ट. प्रपोजल के लिए साथ में लिया था, अब फंडिंग आ गया, अब हम दोनों को झेलना है, ऐसे मत करो. ओके, सो शुड वी स्टार्ट. कितने ग्रुप से? ग्रुप 1. Okay, you will be group 1. Okay, so you can sit separately. Please, now you utilize this space, split out so that I can identify each group. At least leave one chair in between. Team 2, sir. Okay. Me, Deepa ma'am and Ratida. Okay, please separate out. हम दोनों में जिनके लैपटॉप कमजोर है आगे आके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ मैंने 7 प्लग पॉइंट अरेंज करके रखे हैं. फर्स्ट बेंचर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. Okay, I got 2 teams now. Third team, okay. 2 of you, 3 of you. पॉइंट करते यहाँ पे आप तो मेरे लैपटॉप पे कर सकते हो. आप साथ में बैठ जाओ. एक लैपटॉप पे करेंगे और दूसरा चार्जिंग पे लगा देंगे. इस पे लगा देंगे. ऐसा भी मेरा चार्जिंग नहीं, मेरा पूरा चार्ज है. Again I am telling you, this is not a restriction. जिनको जाना है जा सकते हैं. मैम बहुत ठंडा लग रहा है, पर इससे हो जाता है. फोटो घेतला? Recording is still on, so should I pause it? हाँ. Okay. So I purposefully made it so small
that nobody can read on board and focus towards me. But still there are people who will try to read this. I really respect your eyes. So the first thing is the title. Okay. So I will have to give you maybe 5-10 minutes max to think about a title of your research. Okay. Maybe a broad domain. ठीक है, अभी मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो शायद किसी को चलाने का मैकेनिज्म बनाना. इट्स अप टू यू. अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो मैं जनरली बोलता हूँ कि वोटिंग ले लो. ठीक है, तो 3 लोग हैं, उसमें से जो मैक्सिमम वोट जीतेगा, तो 3 जने, ईच वन कैन हिज ओन आइडिया. करेक्ट, यू वोट. ठीक है, अदरवाइज यू कैन म्यूचुअली डिसाइड, क्योंकि एक इंसान एक तरह से सोचना इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो इसीलिए आप अपने अपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करो, जस्ट 5 मिनट्स. ओके, एंड देन आई थिंक ईच ग्रुप शुड हैव फाइनलाइज्ड देयर टॉपिक. वी विल आस्क मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप टू ब्रीफली speak out loudly what the topic is. Okay, so your time starts now, 5 minutes from now. Okay, I will just tell you one thing. While thinking about a title, please focus on use. जो भी आप बनाओगे उसको यूज कौन करेगा. ठीक है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो वो शायद अच्छी चीज नहीं है. करेक्ट. सो यूजर एज अ सोसाइटी. ठीक है, जितना ज्यादा यूजर्स होंगे उतना वो प्रोजेक्ट अच्छा. ठीक है, okay, so next part in title formation, you might have thought some title. Okay, now many of you might have started searching on internet. Okay, or you might have some rough idea and then started searching on internet. Very bad approach. Okay, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जनरेशन का, मतलब इंक्लूडिंग अस, is we are internet dependent. Correct? Let us cut off internet for some time and just think what I want to develop. That's why instead of title I said rough title. We will search on internet because literature review is part of a research proposal writing. So we will search internet, पर उसका टाइम आएगा. ठीक है, तो अभी सिर्फ कीवर्ड्स लिखने आपको, टाइटल भी नहीं फॉर्म होगा. रफ टाइटल में सिर्फ कीवर्ड्स आएंगे कि क्या होगा. ठीक है, क्लियर विद दिस? सो इवन यू डोंट हैव टू सर्च सिनोनिम्स फ्रॉम द नेट. ठीक है, जितना सिंपल रख सकते हो रखो उसको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1. आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग. सो हियर वी गॉट सम 6 odd titles. Okay, let us understand what is there in title. Firstly, we will try to say use. So all of you had some use, correct? It's satisfied. In bracket I have written something, correct? Yes. That is the name of the technology behind this project. So not for all project I wrote, only for some. And you will also realize while noting down, I was listening to your entire title, but I was not copying it over here. Okay, so me as a person was trying to gauge what is the idea with just these many words, where for one title I could not understand what they are trying to do because it was so broad. We have to narrow it down, because if your title cannot make it clear to the reader, it won't go ahead. ठीक है, तो आपकी रिव्यू कमेटी जो है वो पहला चीज पढ़ती है वो टाइटल ही है. और टाइटल इज 1 वर्ड में 10 स्टैंडर्ड बच्चे को अगर आपको समझाना है कि तुम क्या कर रहे हो,
जब तक उस लेवल तक आप अपना इंग्लिश ब्रॉड डाउन नहीं करते, उस लेवल तक आपका टाइटल सिंक्रोनाइज या कॉम्पैक्ट नहीं करते, एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 11 words, not letters. So you have to fit everything in 11 words. Why 11 words? Because पहले के जमाने में डॉस हुआ करता था, उसमें उससे बड़ा टाइटल फिट नहीं होता था. But that is not the exact reason, but that's how we follow. Try to keep it as concise. These, that, in, the words सब हटा दो, फिर भी मीनिंग बनना चाहिए उससे. ठीक है, क्लियर? So that was a rough title. We will finalize. So as of now, if you are familiar with Word, just type out your title within 11 words. Okay, हम यहाँ करने वाले हैं, तो इसीलिए लैपटॉप लाए. तो आप टाइटल टाइप कर दो. पहला चीज आप लिखोगे टाइटल, सीधा का सीधा. It has to be Word, LaTeX, whatever. It's up to you. मैं तो नोटपैड में लिखना सजेस्ट करूंगा. और एक चीज, आप सबको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है विच इज कॉल्ड, ऑनलाइन है, ग्रामरली. ठीक है, एवरीवन हैज टू क्रिएट अ लॉगिन ऑन ग्रामरली. ठीक है, और ग्रामरली के ऑनलाइन एडिटर में टाइप करो टाइटल. ठीक है, ग्रामरली के ऑनलाइन एडिटर में आपका टाइटल टाइप कीजिए. Everyone should have an account on Grammarly. तो आपके मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हो. ठीक है, grammarly.com. हाँ, आ जाइए ना आगे, आपके ग्रुप को यहाँ जगह रखिए. आ जाइए सब लोग. जिनके भी बैटरी प्रॉब्लम है, यहाँ 7 लग है, आ जाइए आगे. अपने ग्रुप चाहिए ना, सबके लिए एक लैपटॉप का सप्लाई में अरेंज किया. अर्जुन नहीं है ना, ये सॉरी मैं सामने विसर गई तुम्हारा. अर्जुन नहीं है. हाँ सॉरी. ओके, ग्रामरली पे सबके अकाउंट बन चुके हैं. डायरेक्टली यूज करती हूँ मैं. अकाउंट भी लॉगिन नहीं कर रहा था डायरेक्टली. हाँ, लॉगिन करा. आई विल टेल यू द रीजन लेटर. अच्छा, कारण की मी यूज करते पण मी डायरेक्टली क्विकली जस्ट. हाँ, ऑनलाइनच करायचं आहे, बट विथ लॉगिन, सो दॅट ऑल द डेटा इज स्टोर्ड. Okay, once you finish writing on Grammarly, Grammarly will itself try to correct it with some suggestions. Use them if they make sense to you. Don't just blindly say okay, क्योंकि उसको कई technical terms पता नहीं होती, तो it will try to fit it nearest English word. But if it makes sense to you, please correct it. Everyone has done with the title? It says add to Chrome, so that is what I have done. हाँ, that's okay. You go to this website called app.grammarly.com. Then you get the actual editor. app.grammarly.com. Otherwise, it will ask you to download some extensions for Word, Chrome, etc., etc. Don't fall into the trap. app.grammarly.com. But after you have logged in, okay? Without logging, if you try this, it won't allow you to do that. ठीक है, so app.grammarly.com. app.grammarly.com. But add इस वाले में साइन में देख इसमें आएगा. साइन करके पहले वाले इसमें डाउन ना. ऐड में नहीं. Okay, so after this step, everyone will do a paraphrasing for fluency using Quillbot. Quillibot or Quillbot. Type it in Google. Mostly our college might block it, so you can do it through your mobile. Okay, Quillbot. Quillbot is a paraphrasing tool, highly not recommended for students. आप अगर नेट से कुछ पैराग्राफ उठाते हो और क्विलबॉट में डालते हो तो वो रीराइट करके देता है. ठीक है, पर क्विलबॉट इज नॉट मेंट फॉर दैट. राइट नाउ वी आर लर्निंग इट्स एक्चुअल यूज. ओके,
Quillbot has an option of fluency rewriting. So click on fluency and rewrite your title. Quillbot. और इस तरह के बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स अवेलेबल है, बट दिस इज द बेस्ट वन. So Quillbot में what we are supposed to do? Sorry, I missed it. Okay, in Quillbot you have to paste your title from Grammarly, click on fluency and say paraphrase or rephrase. And mostly if it doesn't do any changes, your title is already fantastic. Detection and identification. हाँ. app.grammarly.com. हाँ, ये सिलेक्ट कर दीजिए. आप हाँ, वो आप ऑप्शन क्लिक करते जाइए, वो आगे जाएगा. Sir, in Grammarly, what is Africa का पता है? Once you log in, go to the app.grammarly.com. You will get a WordPad like notepad like thing. You type your title. If it suggests any correction, you think over it. If it is not, it's okay. Now next thing is looking good. Oh, हाँ, स्कोर भी देगा आपको. हाँ, साइड में स्कोर भी होगा आपके टाइटल का. 80, 90, 95, 99, 100 भी होगा. Had to prove करना है. मेरा कैसे टू शॉर्ट? हाँ. Too short, it will not be. Okay. Nice. But then sir, उसके बाद what is it? Then I asked you to go to the Quillbot. That's a separate. That's a separate tool, online tool for article rewriting. ठीक है? ये जो गूगल डॉक तूने दिया ना, इसमें यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन होता है, तो ये दिख जाएगा ग्रामर. वो पहले का डिलीट कर. पहले का सैंपल डॉक्यूमेंट. कंट्रोल ए डिलीट और वहाँ पे टाइप. इस पे टिक कर, तो ये रीलोड करेगा. ओके. अब जैसे क्लासरूम में होता है, कुछ बच्चे फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, तो बाकी के लिए वेट करेंगे हम, या फिर इजी सॉल्यूशन क्या है, हम उनके यहाँ जाके उनको दिखा देंगे कि क्या करना है, वरना हम सब बैठे रहेंगे. करेक्ट. सो कौन कौन से ग्रुप का क्विलबॉट तक नहीं पहुंचा है? ओके, आई थिंक ऑल द ग्रुप्स आर ऑन क्विलबॉट स्टेज. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड this particular step is there for every writing. ठीक है? Those who are from Marathi medium like me or any other language medium who are afraid of writing in English, these two steps will ensure that you are writing perfect English. ठीक है? And those who are very confident, convent school, they can also use it and check whether they are not suggesting any corrections. Correct? It suggests correction, but we may or may not take हाँ. So that is a separate confidence. If that is suggesting and still you are confident that you are more correct, that is great. Because I wrote detection and identification of skin rashes in children. It is saying skin rashes in children, detection and identification. I want to take the one that I have already written. Okay. मैंने ये डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन आता ग्रामरली ची काही संबंध नाही. सेपरेट वेबसाइट क्विलबॉट. डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किन रैशेस. गूगल वर क्विलबॉट सर्च इसने करा. मुझे स्किन रैशेस इन चिल्ड्रन डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन 400 वर्ड्स पर्यंत क्लिक कर. It's not letting me copy paste. Okay. We should फ्लुएंसी रीराइट होके अच्छे टाइटल सबके पास आ गए हैं. कौन सा ग्रुप बाकी है? कोई इनको हेल्प कर दो ना. आप हेल्प कर दो आगे वाले ग्रुप को. आप लोगों का आया टाइटल फाइनल अच्छा वाला? आप लोगों का ग्रुप 2 नहीं आ रहा है. आपका आ गया? आपका भी आ गया ना? ग्रुप 6 आपका भी आ गया? ग्रुप 4 योर टाइटल इज डन. ग्रुप 4 एंड ग्रुप 3
लेकिन हमने इतना छोटा टेबल दिया ओके now we move to the next part all of you please listen ये आ रहा है यहाँ पे काम okay can I have your attention now और यहाँ पे मुझे दे रहा है एडजस्ट गोल एडजस्ट टेक्स्ट इज टू शॉर्ट अरे बड़बड़ वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो ओके नाउ वी मूव अहेड ठीक है किसी का रह गया टाइटल तो वी विल रीड इट अगेन नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एब्स्ट्रैक्ट उसके पहले एक बड़ा क्वेश्चन मैंने यहाँ कुछ छोटा में लिखा है PI ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हु शुड बी द PI ऑफ द प्रोजेक्ट आप 4 लोग हो हमेशा ये झगड़ा रहता है क्रेडिट कौन उड़ा ले जाएगा करेक्ट हमारे इधर उल्टा है ओके जो भी है देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि PI हम एक को ही देते हैं अब लेट्स से IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है IoT में मेरे 7 पब्लिकेशंस है मेरा जो पार्टनर है उसके 10 पब्लिकेशंस हैं उसमें लास्ट ईयर में मेरे 5 है उसके 2 है तो आई शुड बी द PI प्लीज अंडरस्टैंड दिस ठीक है इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन नंबर्स okay let's say these 2 girls are there on IoT domain first person has 10 publications in IoT domain ठीक है second one has only 7 ठीक है first person is PhD postdoc more experience second person is newcomer ठीक है but only based on last 2 years or last year if that 7 fellow has 5 publications out of 7 on IoT domain and the other fellow has only 2 still the PI will be the 7th person who has less number so it is never on numbers recent work done करके आगे सेक्शन होगा उसमें सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में जो पेपर पब्लिश है उतने ही दिखते हैं सो इट इज नॉट ऑन नंबर्स तो उस सेक्शन में इस बंदे के 5 दिखेंगे दूसरे बंदे के 2 दिखेंगे ठीक है सेकेंडली हम डॉक्टर नहीं लगाते we expect everyone to be PhD ठीक है आपके गाइड को भी बोलो डॉक्टर लगाना बंद कर दे ठीक है इफ यू आर एमटेक स्टूडेंट डूइंग PhD पेपर्स में रिसर्च प्रपोजल्स में हर जगह डॉक्टर प्रोफेसर नहीं लगाते ठीक है नेवर ठीक है मैक्सिमम अगर आपको लिखना है वो कहीं ना कहीं आएगा तो कॉमा करके PhD उतना ही लिखते हैं पर वो भी नहीं आता ठीक है सो ओनली योर नेम और ये नेम का एक इम्पोर्टेंस है कि अगर मैं निनाद D मेहंदले लिख रहा हूं तो हर जगह वैसे ही लिखना है कभी N मेहंदले कभी NDM ऐसे नहीं लिखना है सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट पब्लिकेशन टिल योर लास्ट पब्लिकेशन अगर आपने N मेहंदले लिखा है तो हमेशा वही लिखो अदरवाइज वो स्कोपस एग्रीगेट नहीं करता 2 सेपरेट ऑथर आते हैं ठीक है एवरीवेयर व्हेन यू राइट एटलीस्ट तुम्हारा स्टूडेंट लिख देगा गलत तो कुछ नहीं कर सकते समझ में आ रहा है सो व्हेनेवर यू राइट प्लीज कीप अ कांस्टेंट नेम प्रेफरेबली लॉन्गर यूनिक इज बेटर जैसे राहुल खन्ना बहुत सारे हो जाएंगे फिर कैसे डिसाइड करेगा कौन सा पेपर किसका है ठीक है सो ट्राई टू हैव अ कंप्लीट नेम उसके लिए सबको एक चीज करनी है ORCID ये क्रिएट करना है दिस इज अ यूनिक आईडी फॉर एवरी रिसर्चर्स ऑन द अर्थ ओके मार्स वाले कंसीडर नहीं हो रहे सो ऑर्सिड आईडी सबका एक ही होना है मैं सोमयाथ में था तो मेरा अलग ऑर्सिड आईडी था IIT में था अलग नहीं ऑर्सिड आईडी एक ही होना है जिसकी वजह से आप सारे डेटाबेस पे लिंक हो जाते हैं इवन आपका ये प्रपोजल भी उसके साथ लिंक होता है ठीक है तो जिनके ऑर्सिड आईडी नहीं है ब्रेक में निकलवा लो या फिर आफ्टर दिस सेशन प्लीज गेट इट डन एंड नाउ अगेन आई विल गिव यू 2 minutes to decide PI
For that, you please discuss कि किसके कितने publication है. Having 0 publication is no issue. ठीक है? पर फिर क्या करेंगे? अगर तीनों के ही 0 है तो टॉस कर लो. या फिर जिसने आइडिया दिया, जिसकी बैट उसकी बैटिंग वैसा है. ठीक है? और इक्वल नंबर है तो फिर सीनियरिटी से जाओ प्लीज. Okay, let us move ahead now. Next is, please all of you, I want your attention. This is very very important. Now we are going to understand how to write abstract. Okay, abstract is something which we write at the end. Okay, never write abstract from the beginning, but firstly we will write a rough abstract. Abstract के कुछ sequence होते हैं जिसको follow करना चाहिए. So there is something called as, you know, Nature करके एक website है. Nature is the highest cited publication in the world. ठीक है, 60+ citation होते हैं उसके. उन्होंने एक नेचर समरी पैराग्राफ करके डॉक्यूमेंट दिया हुआ है फॉर ऑल द रिसर्चर्स, जिसमें आपको सैंपल एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है बताया गया है. ठीक है, बट आई विल मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. आई विल टीच यू हियर हाउ टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, पहली लाइन, अभी एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो एज्यूम एवरीथिंग इज डन. हाँ, पहली बात दिमाग से निकाल लो कि ये किया नहीं है, ये टाइटल है, ये हो चुका है. हाँ, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो ये दिमाग में क्लियर है कि ये हो चुका है. ठीक है, फर्स्ट लाइन इज फॉर जनरल ऑडियंस, मतलब आपके घर के लिए दादी से लेके छोटा बेबी सबको समझना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो. ठीक है, फर्स्ट लाइन और फर्स्ट 2 लाइन्स मैक्स. फर्स्ट लाइन इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, दैट्स इट. ठीक है, इट्स फॉर द 10th स्टैंडर्ड, आपके घर का या दादी किसी को भी पढ़ के समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है, सेकेंड लाइन इज फॉर द इंजीनियर्स इन योर डोमेन. जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो हनुमंते सर को समझ में आएगा, शायद 10th ग्रेडर को नहीं समझ में आएगा. ठीक है, सो सेकेंड लाइन, और अगर पहले 2 गए तो थर्ड लाइन इज फॉर इंजीनियर्स और को साइंटिस्ट इन योर फील्ड. Clear? So first 2 lines are from the abstract. You can write. Think carefully. आप खुद को सोचो कि ये उसको समझ में आएगा क्या. करेक्ट. लाइन बड़े बड़े नहीं लिखते. अगेन आई एम टेलिंग यू, कर्ता कर्म क्रियापद फुल स्टॉप. बेस्ट इंग्लिश राइटिंग इज स्मॉलर सेंटेंसेस. दिस इज Ninad. Finish. That is a good sentence. Okay. So just write very small sentences, very precisely as per these 2 requirements. The third line is something which I wrote in bracket: technology, methodology, how we have done it, or how we are going to do it. The 3 and 4 line is about the methodology. Generally only third line is allowed as a methodology because 4th line is result. But since this is the proposal, we don't know what will be the result. So anticipatory results that you can put as the 4th line. Is that clear? First is general audience, second is scientist, third is methodology, how you have done it, fourth is what are the results that you got. Okay? And last line is future use to the society. जैसे मैंने पंखा बना लिया, अब ये लोगों को हवा देगा. That is the future use to the society. So finish the abstract. Again, type in Grammarly. If you want to use Quillbot, you can, and finish the abstract. I don't have time. I give you exact 10 minutes from now. I should be having abstract ready. 10 minutes. ठीक है? Okay. So total project cost blank. Then project duration. Now project duration is a funny thing. Generally we do it for max. एक प्रोजेक्ट 3 साल के ऊपर नहीं चलता. So we generally do it for 3 years. And
जब उसको एक साल में करना होता है तो सिर्फ एक साल करते हैं और हर चीज को स्केल डाउन कर देते हैं. That how to do I will teach you later. But right now you can just blindly write project duration 3 years. ठीक है. There are some projects which need 5 years, 10 years also. पर अभी हम एक फंडिंग तो ले, बाद में 10 years का प्रपोजल कैसे दिखाते हैं. ठीक है. So 3 years वाला जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो हम लिखेंगे. So project duration will be 3 years standard. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट INR लिखने से ही क्लियर हो जाता है कि इंडियन पीआई है, USD में नहीं लिखते. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमेशा INR में ही लिखो. ठीक है. नेक्स्ट इज so we have finished this. Okay, now you have to give the address. Now this address has to be a institutional address of your PI along with its all contact numbers. ठीक है. तो एड्रेस तो सबका यहाँ पे शायद केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी, मुंबई इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया लिखना सीख जाओ अभी. वी आर इंटरनेशनल पीपल. ठीक है. नेवर राइट मुंबई 400, नहीं, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया एंड देन यू राइट द पिन कोड एवरीवेयर. हम इंटरनेशनल लेवल की ही बातें करते हैं, नेशनल लेवल पे भी काम नहीं करते. करेक्ट. So write the full address, 2 lines you can use it for, and then the pin code is also important. Okay, and then you write contact details. ठीक है. The next is address, and then contact details. यहाँ पे दोनों डिटेल्स जरूरी है, फोन नंबर और ईमेल. और अगर ईमेल तीनों के लिख रहे हो तो पहला पीआई का ब्रैकेट में पीआई, उसके बाद सेकंड थर्ड को पीआई ब्रैकेट में, और 4 लोग हैं तो को पीआई. KJC मत लिखो, K.J.J. सोमैया. यहाँ के बाहर किसी को पता नहीं KJC क्या है. करेक्ट. और K.J. ये भी जरूरी है, सिर्फ K.J. नहीं. ठीक है. और K.J. भी नहीं, K.J. ही होना चाहिए. सर कॉन्टैक्ट डिटेल में फोन ऐसा लिखने का है. फोन, हाँ, +91 से नंबर लिखना. पहले नाम फोन लिखने का, नंबर लिखने का और ब्रैकेट में पीआई लिखने का. अगर सबके नंबर दे रहे हो तो नंबर जनरली एक देते हैं, ईमेल सब. अरे तुझा देऊन टाक. ठीक है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर डन. So we are done with name, abstract, investigators, email address, total project cost, project duration, address. Now we come to the next part. So अभी back to the school. ठीक है. लेकिन ओपन बुक टेस्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क के क्वेश्चन है ये. हाँ, उसका आंसर लिखना है. कब 10 मार्क का है, कब 5 मार्क का है, मैं बताऊंगा. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. पहले जो लिखा एब्स्ट्रैक्ट में सब भूल जाने का. पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. दैट्स इट. यू कैन रिपीट द सेम लाइन, नो इश्यूज, बट इफ इट दैट सेज दिस आंसर एम ऑफ द प्रोजेक्ट में आता है तो लिखो. हमेशा ये क्वेश्चन के आंसर लिखते हो भूल जाओ पहले क्या लिखा है. ये सेपरेट ओपन बुक क्वेश्चन है, आपके ग्रुप को आया हुआ. 5 मार्क के लिए लिखना है व्हाट इज एम ऑफ द प्रोजेक्ट. क्लियर विद दिस. ओपन बुक क्यों? क्योंकि नाउ यू स्टार्ट यूजिंग इंटरनेट. पर डोंट कॉपी पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट. आप जैसे पेपर में लिखते थे, पढ़ाई थोड़ी करके खुद से लिख देते थे.
जनरली आई प्रेफर राइटिंग एम जो भी है पहले पेपर पे फिर सिर्फ टाइप कर दो, ठीक है। और एक ट्रिक भी बताता हूँ, अगर आपको कोई सेंटेंस पसंद ही आया और लिखना ही है तो आप अपनी मदर टंग में आपके बाजू वाले को बताओ कि ये लिखो। अपनी मदर टंग इंग्लिश ना हो ये इंश्योर करना। क्लियर? इसीलिए ग्रुप में लिखना अच्छा रहता है। कॉपी आई का काम यही है, जो मैं कह रहा हूँ वो टू टाइप कर, वही सेंटेंस बोलो, एज इट इज बोलो, जो तुमको समझाए वो उसके इंग्लिश में लिखने दो, वो कॉपी पेस्ट नहीं होता। क्लियर विद दिस? कितने जना आपको कोई मदद चाहिए तो आगे वालों से ले लेना। सो नाउ 5 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए एग्जाम में कितना टाइम लेते हो आप? 10 मिनट दिए। चलो 10 मिनट में मुझे एम ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए। आंसर के लेंथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कुड बी 2 लाइन्स, इट कुड बी 10 लाइन्स। एम ऑफ द प्रोजेक्ट का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, एम ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स इट, डोंट डेविएट। एम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है वो लिखना है 5 मार्क्स में। मैंने कुछ बोला कि 5 मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 on 5 के लिए जो चाहिए वो डालो। Yeah. So I think whatever sentences you have written, it clearly states what is the aim of this project. ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं होती। एम ऑफ द प्रोजेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज द एम ऑफ माय प्रोजेक्ट। फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट इट कुड बी डिटेक्टिंग अ स्किन रैश, वो वर्ड आना चाहिए। फॉर सेकंड प्रोजेक्ट इट कुड बी फाइंडिंग द लॉस्ट डॉक्यूमेंट। फॉर थर्ड डिटेक्टिंग द अर्थक्वेक। फॉर फोर्थ correcting the posture. For fifth, controlling the landslide or whatever. And for sixth, management of diabetic foot. Okay? Now, next part is scope of this project. Now, scope of this. What is the scope of this project? Again, 5 marks answer you have to write. पर यहाँ पे हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ यूज हो सकता है, स्कोप क्या है इस प्रोजेक्ट का, इसको आगे आप कैसे बड़ा कर सकते हो, ठीक है, कितना ऑलरेडी यूज हो रहा है, ये जाएगा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में, ठीक है। जैसे मुझे एसी का प्रपोजल लिखना है तो मैं क्या स्कोप लिखूंगा कि ये हर घर में लग सकता है। करंटली अभी पंखे चल रहे हैं, पर जिसको भी ठंडी एनवायरनमेंट चाहिए वो हर घर में एसी इंस्टॉल कर सकता है। ये एसी के प्रपोजल का स्कोप है। तो अंडरस्टैंड, पहले का सब भूल जाओ, एम में जो सेंटेंस लिखा है वो भी भूलना है। अभी सिर्फ 5 मार्क के लिए लिखना है कि व्हाट इज स्कोप ऑफ माय प्रोजेक्ट। स्कोप मींस वेयर माय प्रोजेक्ट विल बी अप्लाइड, ठीक है। इंडिपेंडेंट लिखने की आदत डालो, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अभी तो लिखा है वापस कैसे लिखूं, नहीं, अगर वो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो वहां होना ही चाहिए, क्योंकि जो रीडर होता है वो भी अलग अलग सेक्शन पढ़ता है और हम ऑब्वियसली सेम टू सेम लाइन वापस नहीं लिखते, क्योंकि वो एम के लिए अलग तरह से फ्रेम हुई थी, स्कोप के लिए अलग तरह से फ्रेम होने वाली है। सर पर इसमें रिपीटेशन नहीं होगा क्या? होने दो, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम, स्कोप, रैशनल, ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या रहता है, इट्स द सेम थिंग। वो हम सिर्फ अलग अलग तरीके से उसको समझा रहे हैं कि किसी में तो तुझे समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अंडरस्टूड? तो इंडिपेंडेंटली व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस आंसर जो है वो लिखना है। आई डोंट केयर मैंने क्या लिखा है पहले, आई डोंट केयर मैंने एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा, आई डोंट केयर मैंने एम में क्या लिखा। स्कोप ऑफ माय प्रोजेक्ट इज, so while drawing a diagram, first you have to draw it on a paper. प्रपोज सिस्टम डायग्राम आपको कैसी चाहिए, पेपर पे बना लो हाथ से, दैट इज द फास्टेस्ट वे, विदाउट सेइंग अ वर्ड। इफ आई वांट टू शो अ पिक्चर
ठीक है, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज. ठीक है, तो मैं अर्थक्वेक है तो कोई जमीन बना के ऐसे हिलती हुई दिखाऊंगा, या फिर स्किन रैश है तो स्क्रीन रैश का एक फोटो डालूंगा. करेक्ट. Without saying a word, if I want to explain the entire thing, it won't be a direct diagram available on the net, because this is something what you have thought of. ठीक है, you might get very similar one, you might get exact also. ठीक है, you take it. Diagrams are not the part of a plagiarism. Remember, you can use diagrams. I will tell you how to use them. But पहली चीज तो अगर कॉपी पेस्टेड है तो फिगर रिप्रोड्यूस फ्रॉम लिखना होता है उसी पिक्चर में. ठीक है, तो लेट अस डू दैट. आई विल लाइवली कॉपी वन डायग्राम एंड शो इट टू यू हाउ टू डू दैट. सो लेट अस, आई होप आई कैन सी द टॉप पेज. Okay, so let us do some digital theft. Okay, so you can directly go to something called as google.com. Gmail. आदत लग गई इसको. सर ही ब्लॉक डायग्राम पण असू शकते का? Oh, any diagram. There is no restriction. Okay. Now I'm not going to take any of those topics. वो आप क्योंकि करोगे ही. So let me say. ठीक है, some quadcopter drone I want to. Okay. So first you search, then you go to the images. I hope ये मनी क्लिक करने देगा. Okay. Now you will get so many images, correct? And even if you scroll down, you get further more. Now remember, each image is worth 1,000 words. तो आप actually 1,000 words अभी पढ़ रहे हो. Now you have to scroll down to find the best one that you get. ठीक है? To explain your concept without saying a word. Clear? So you have to scroll down. You might get the first one only. That's up to your luck. ठीक है, पर जितना आप स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन याद रखना, ऊपर एक अच्छी इमेज है, फिर भी स्क्रॉल डाउन करो, क्योंकि कैसा होता है, लड़की देखते हो पहली देख ली, पसंद कर ली, तो बाकी क्या ऑप्शन मिस हो रहे हैं. So, देख लो, उसके साथ बातचीत चालू रखो, सोच के बता रहे. So you scroll down completely, and whenever you find the best figure, please copy it to PowerPoint. Okay? So I will try to take the 37%. 37%. Okay, I think this is the best image for what I am trying to do. Okay. So I hope everybody has selected their figure. PowerPoint. बता रहा हूँ, कर रहे हैं हम. ठीक है, सबने अपनी अपनी फिगर ले ली. चलो. Now next thing is, okay. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, अगर आपको एकदम सेफ जाना है तो गूगल में ऑप्शन होता है CC4 या क्रिएटिव कॉमन्स वाले इमेजेस विच आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट यू कैन यूज. उसमें आपको फिगर रिप्रोड्यूस फ्रॉम लिखने की भी जरूरत नहीं है. Sir, can you please repeat it? See, most of the images are subject to copyright, लिखा रहता है वहाँ पे. So when you take such image, you have to write figure reproduce from whatever. Let's say this is
xbotics.com, ठीक है। ये फिगर के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर ये फिगर हमने वहां से ली है तो, अगर कोई रिसर्च पेपर है तो साइट करना पड़ेगा, ठीक है। पर जनरली कंसेप्ट डायग्राम में एक फिगर से होता नहीं है, हम 2-4 फिगर लेके फिर उससे मर्ज करके फाइनल फिगर बनता है, ठीक है। सो आपको जो भी फिगर है उसको यहाँ से कॉपी कर लो। अगर आपको सेफ रहना है तो गूगल सर्च में, एक्स्ट्रा एडवांस सर्च में क्रिएटिव कॉमन वाले फिगर मिलते हैं जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ लाइसेंस टाइप में सिलेक्ट करो CC4, ठीक है, एंड देन यू कैन यूज देम डायरेक्टली। अदरवाइज दिस इज नॉट अलाउड टू यूज समबडी एल्सेस फिगर्स, ठीक है। खुद से बनाना है तो ऑटोकैड, सॉलिड डेस्क, या फिर सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर जो है वो है थिंकरकैड। हम लोग सर्किट सिमुलेशन के लिए जो यूज करते हैं उसको यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है, उसमें सारे ड्रैग एंड ड्रॉप से आप बना सकते हो चीजें। और थिंगीवर्स में आपको बहुत सारे चीजों के 3D मॉडल मिल जाते हैं, वो आप थिंकरकैड में लाके फिर उसको रोटेट करके, मैंने एक शायद इमेज दिखाया था यहाँ आपको सैंपल के लिए, थिंगीवर्स। ओके, आई थिंक आई विल हैव समथिंग ओवर हियर। यहाँ देखिए, ये जो चीज है ये सॉलिड वर्क्स में बनी हुई है, इसके नीचे ये जो LCD है वो रेडीमेड है। पर जब ये इंटीग्रेट होके सिंगल डायग्राम दिख रही है आपको, तो मुझे किसी को एक्नॉलेज भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का डायग्राम बन चुका है, ठीक है। ये वाले फिगर्स तो किसी और पेपर के, अंडरस्टूड। सो बेसिकली यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेस कौन से, अगर कैड ड्राइंग डायरेक्टली चाहिए, 3D ग्रैफकैड है या थिंगीवर्स है, वहां से डायरेक्ट 3D मॉडल्स आपको मिलते हैं। ग्रैफकैड एंड थिंगीवर्स। थिंगी, THINGIVERS, थिंग्स का यूनिवर्स, थिंगीवर्स। आप गूगल पे थोड़ा मिसमेल टाइप करो, ढूंढ लेगा। फिर ग्रैफकैड है, ठीक है। और ये सारे 3D मॉडल आप साथ में लाके कंबाइन कहाँ करोगे, तो पावर पॉइंट लेटेस्ट वाला उसको सपोर्ट करता है। अगर पावर पॉइंट नहीं यूज करने आता तो यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज थिंकरकैड, ऑटोडेस्क का थिंकरकैड सिमुलेटर जो है अपना सर्किट का। Even if you change the Orientation. or 3D, it is a new image. Yes, yes. So, but PowerPoint just having that. नाही, you can drop from outside, import हो जाता है, ठीक है। और जिसको एकदम ही खुद से बनाना है, they can go for AutoCAD या फिर SolidWorks। Images ठीक है, दिस विल टेक टाइम, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम अगर सही है प्रपोजल थ्रू हो जाता है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द ओनली डायग्राम वेयर यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। प्रपोजल पढ़ने वाला भी बस इतना ही देखता है मोस्टली, और तुमने पहले जो कचरा लिखा है वो नहीं पढ़ने वाला। ये डायग्राम देख के अगर उसको समझ में आता है तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम्हारा प्रपोजल थ्रू है, नहीं आता तो गया बाजू में, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम देते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई वाज शोइंग यू हाउ टू कॉपी पेस्ट दिस डायग्राम। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी कॉपीड वन इमेज, नाउ यू हैव टू ओपन पावर पॉइंट। Okay, now come to here, right click, okay, and click on new slide, ठीक है। यहाँ पे आप पहले तो इमेज को पेस्ट कर दो। I think I did not copy it.
वर्ड मध्ये पण पेस्ट करते. नाही पॉवर पॉईंट मध्येच करायची. आय विल टेल यू द रिझन. तिथे झाली पॉवर पॉईंट मध्ये झाली. टू ॲड टायटल Okay, so let us resume. As always, there was a technical glitch. which gave us some. So now I will just show you how to copy paste the figures. Very important lesson. And why PowerPoint? Okay, why not Paint and anything else? Okay. So let us go back to. I think Chrome is going somewhere. So I was searching something called as quadcopter drone. Okay. And internet is not available. आता तिकडे see करावं लागेल. नहीं. Okay. So I have searched for many images. I think I will show you something which is most difficult one to copy paste. Okay. So remember, this has everything. First thing you create a new layout. Go to blank and paste your image as image. Okay. The third option, paste as image. Okay. Now you try to maximize it full page. Okay. Now what you can do, there are many things which are pre-written. Pre-written text is never encouraged. Okay. So you have to somehow get rid of this text. There are multiple ways. First is double click on it and click on remove background. ठीक है. अगर पीछे का ग्रास नहीं चाहिए क्वाडकॉप्टर के या कोई दूसरा आदमी खड़ा है, एक ही चाहिए, so click on remove background. ठीक है. It will allow you to select the areas that you want to keep. So you can just say keep areas and click on this. Okay. जिनके पास पुराने ऑफिस है इसमें उसमें ये सारे फोटोशॉप टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उनको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा. तो आप देखोगे फिगर एकदम क्लियर हो गई है. ठीक है. अगर वो नहीं है, पुराना ऑफिस है, लेट से हम बाबा आदम के हैं, हाँ, ठीक है, आपके पास नहीं है वो ऑप्शन, तो क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन है, इसको कट करो. ठीक है. अपना पुराना तरीका, आप बाबा आदम वाले हो तो ये तो आपको आता ही होगा, है ना, कंट्रोल वी. ठीक है. पेंट में जाओ और ये वाला टूल सिलेक्ट करना जिससे आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हो. ठीक है. फ्री फॉर्म सिलेक्शन से आपको जो चीजें नहीं चाहिए उसके अराउंड बस माउस से प्यार से ड्रॉ कर दो और डिलीट दबा दो. ठीक है. So this is also you can do. There is another way, but I will never encourage you to keep any existing text. All the text you put should be your own. और कुछ कुछ जगह ऐसे छोटा है तो you can do this. Zoom in, zoom in, zoom in. ठीक है. Take the eraser and clear it. ठीक है. फोटोशॉप वाला ऑप्शन ऑब्वियसली बेटर है क्योंकि ये इरेज करते वक्त देखो यहाँ कोई गलती से ये कट कर देता है ना, उसको वापस रिक्रिएट करने में बहुत पेन होगी फिर.
ये ऐसे ड्रॉ करते रहो, बस undo फिर यहाँ से कंट्रोल Z ये वाला चीज है वो बैकग्राउंड में कौन सा कलर है परफेक्टली चूज करके देगा, फिर वो मैच करेगा। और कंट्रोल Z एक ही होता है कहीं, ठीक है, एक ही होता है कंट्रोल Z, इमेज में वहाँ पे एक ही बार undo। वाइट कलर है। नहीं नहीं, आई विल शो यू विद बैकग्राउंड। चलो अरे इसमें तो वाइट कलर नहीं है। ये वाला लेते हैं, इसमें तो कोई नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें पेंट पावर पॉइंट, ठीक है, डबल क्लिक, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन। नाउ यहाँ देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है बराबर, ये विंग्स ठीक से नहीं आए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये छोटी चीज का क्या करेंगे, बराबर है, इसको लेके जाओ पेंट में। छोटी छोटी चीजें पेंट बराबर के खत्म कर देता है। हाँ ठीक है, ये वाली चीजें यहाँ से एकदम आसानी से आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, इरेजर का साइज लेकिन छोटू सा लेना। थोड़ा सा इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन हाँ, यही सब डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। हाथ का मूवमेंट, ठीक है। कंट्रोल होना चाहिए। और एक तरीका सिखाता हूँ विच इज इवन फास्टर। चलो अभी ये नहीं चाहिए यहाँ पे। सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू इंसर्ट। नाउ हियर यू कैन ड्रॉ द शेप और यू कैन डायरेक्टली बोरो रेक्टेंगुलर। ठीक है, आई थिंक आई चोज समथिंग रॉन्ग। गो टू इंसर्ट, go to shapes, select a rectangle, okay, and draw it. Now what you can do is shape fill में जाके white fill कर दो, outline भी white कर दो, and now you have your movable eraser। तो जहाँ भी आपको इरेज करना है, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों को ग्रुप कर दो भाई, बिना भूले। कंट्रोल ए, राइट क्लिक, ग्रुप। लेकिन ग्रुप करके रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्लिक इज यू कट इट, पुट इट ऑन अ पेंट, कंट्रोल वी, देन डू क्लिक आउटसाइड, देन डू कंट्रोल सी एंड देन ब्रिंग इट बैक। रिमेम्बर, अदरवाइज वो व्हाइट चीज कभी हिल गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो खून करो, सारे निशान मिटा दो, है ना। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। प्रोफेशनली चोरी करो, प्लेगरिज्म में पकड़ा नहीं जाता इमेज। बड़ी थीसिस लिखने हैं, 5 दिन है, कैसे करूंगा? फिगर्स कॉपी कर सकते हो, लिखना अपने को है। फिगर आधा पेज तो ले ही लेगा ना। तो ऐसे ही हमने 150-200 पेज की थीसिस नाइट में निपटाई है। हाँ? 0% प्लेगरिज्म के साथ। ओके, so do it this properly and I think you can take a break. After the break I want you to be ready with the diagram. चीज याद रखो, सारे डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम इज, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है, सेकेंडली everything is allowed. Okay, now next thing is once you copy paste, let's go back. So once you come to the paint, let us say I have taken this quadcopter. Next thing you have to do is go to the insert, okay, take a arrow. बिना भूले ये करना है। एरो नेमी हमेशा पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपने गलत डाल दिया तो उसको फ्लिप करा लो। ठीक है, एरो हमेशा ब्लैक कलर का होना चाहिए, उसकी विड्थ 3 पॉइंट की होनी चाहिए और एक डायमेंशन हमेशा 0 होना चाहिए। दैट एंश्योर्स कि आपका एरो हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो। ठीक है, और एरो को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, हाइट। ये माउस लेके ऐसा मत करना, हाँ, क्योंकि ये ऐसा पड़ जाता है एरो। यहाँ पे देख सकते हो ये 0 नहीं है। आंखों को बहुत सीधा लगता है, जब प्रिंट होके आता है तो समझ जाते हैं। ठीक है, जो 1 शुड बी 0, ओके। या गो टू शेप आउटलाइन, सिलेक्ट ब्लैक कलर एंड गो टू द वेट, सिलेक्ट 3 पॉइंट वेट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ विंग। इसको भी टाइप करने का तरीका है, जो इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल। ठीक है, फिर फॉन्ट जो है वो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन और 18। ठीक है, और इसको एरो के सेंटर में अरेंज करो।
टाइम्स न्यू रोमन 18. Yeah. Now remember, this figure is gonna shrink down in your document. That's why you give a font size of Times New Roman 18 only. Because when it goes back in a A4 size paper, it looks perfect. 12 हो जाता है वो scaling ratio. ठीक है? नेक्स्ट इज, बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि दो नाम देने हैं, लेट से और एक नाम देना है, तो आप क्या करो, ये वापस नहीं करना, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पे लेट से ये लेग है, तो ये बहुत गलत तरीका है नेमिंग करने का. हाँ, एरो की विड्थ सेम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, ठीक है, और एरो जो है उसको तो अपना आराम से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बड़ा छोटा जो करना है आपको, ठीक है. तो ये चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए नेमिंग में. और लेफ्ट है, आधे नेम राइट में, आधे लेफ्ट में नहीं, एक ही तरफ से नेमिंग, ठीक है. नेमिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ फिगर दिखानी है, बोलना नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेमिंग नहीं कर सकता, ठीक है. तो तुमको जो दिखाना है, जितना ज्यादा क्रिएटिव आदमी लोगे उतना अच्छा है ये चीजें करने के लिए, ठीक है. तो ग्राफिक डिजाइनर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है. आपको बचपन से पेंटिंग की आदत है, आप हाथ से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये डायग्राम बहुत अच्छी बननी चाहिए. हाथ से बनाओ, फोटो खींचो, नेमिंग पावर पॉइंट में करो. कार्टून्स आर अलाउड, एवरीथिंग अलाउड. ये डायग्राम का इंपॉर्टेंस इतना है कि आप यहाँ पे हर तरह से करो, कुछ भी करो, मुझे ये ऐसा डायग्राम दिखाओ जिससे मुझे बिना बोले सब समझ में आना चाहिए. क्लियर? कलर कॉम्बिनेशन जो भी है. नाउ वन मोर थिंग, व्हेन यू कॉपी पेस्ट द थिंग्स, और एक चीज आपको करनी होती है, डबल क्लिक एंड गो टू दिस करेक्शन एंड प्लीज चेंज इट, ठीक है. रीजन इज some of the advanced plagiarism mapper can map the pixel to pixel image, so you have to select the proper colors, ठीक है, जिससे प्रिंट आउट सही से आए. एंड इफ यू वांट टू कीप एवरीथिंग यूनिफॉर्म, यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ दीज. सो आपके सारे डायग्राम जो है, अब ये कहीं से भी वो ओरिजिनल क्वाडकॉप्टर की कॉपी नहीं है ना, ठीक है. सो करेक्शंस, कलर, आर्टिस्टिफिकेट, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इज अलाउड. हर तरह से सबूत मिटाओ कि वो कॉपी पेस्टेड इमेज है, ठीक है. दिस विल टेक टाइम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर ये ठीक से बन गया तो प्रपोजल थ्रू हो जाएगा, ठीक है. तो जिनके टफ टॉपिक है, दे कैन यूज मल्टीपल फिगर्स टुगेदर एंड ट्राई टू ड्रॉ सम एरोज, ठीक है, and try to make this diagram. Sir, write 7 title. Find the plagiarism in image. क्या हुआ? Research work. प्लेगरिज्म क्या है? ज्यादा से ज्यादा इमेज टू इमेज सब्ट्रैक्शन करके या कोरिलेशन निकाल के वो नहीं, कर मतलब सकता है, पर नहीं मॉडिफाई करेंगे ऐसे तो भी फाइन करके देगा. देखो, एट द एंड ऑफ द डे सारे पिक्सल है, उसमें रंग भरने हैं, तो हर इमेज दूसरे से मैच करने लग जाएगा अगर मॉडिफिकेशन भी ट्रेस डाउन करने लगोगे तो. नहीं हो तो सकता है. तुमने एक पिक्चर ड्रॉ किया, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया, हमने ओरिजिनली किया है, पर प्लेगरिज्म चेकर उसको बताएगा सेम ही है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे पिक्सल पे रंग भरना है ना. So that is okay. See, some things in life you can do. Just don't tell anyone about it. हाँ, मतलब we are teachers. We should never tell students. अरे AutoCAD पे ही बनाना होता है भाई. मेरे सारे में देख लो. हाँ. SolidWorks में AutoCAD में ही बनाना होता है. Never tell student these kind of tricks. ठीक है. वो भी सीख लेंगे अपने अपने टाइम आएगा तो.